Namaskar and welcome back to our channel Yogic Theosophy. In today's video, we are going to discuss firstly about what is yoga, its 8 limbs or Ashtanga yoga, its classification, and lastly we are going to give you a set of warm-up exercises which will help you in practicing yogasanas. So let's begin. Yoga is derived from a Sanskrit term yuj, meaning union between body, mind and soul, as well as between the individual self and the higher consciousness. So yoga has numerous benefits. It boosts our immune system, increases muscle strength and flexibility, tones our body, and balances our body metabolism. It also improves our mental health and brings emotional stability. As a whole, yoga brings all-round development in a human being. I believe yoga is not just about working out, but also living a healthy lifestyle. Yoga brings peace and happiness in our lives and fills us with immense positive energy. So now let us learn about a very important aspect of yoga, that is its 8 limbs or Ashtanga yoga. Ashtanga, referring to Ashta or 8 limbs or having 8 components, is a Sanskrit term found in the Yoga Sutras of sage Patanjali. These 8-fold paths of yoga are Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. As now we have learned about Ashtanga yoga, now we shall learn about 4 traditional paths of yoga: Bhakti yoga, Karma yoga, Jnana yoga and Raj yoga. Bhakti yoga refers to devotion to God and also perfect for people who are emotional by nature. Karma yoga refers to action of individual self and suits people with active temperament. Jnana yoga refers to wisdom or knowledge and also most suitable for intellectual people. Lastly, Raj yoga means self-discipline and practice and also known as Ashtanga yoga. Now we shall begin with warm-up exercises. Before starting warm-up exercises, I would like to say its importance and why it is done. Because warm-up exercises increases our body temperature, which helps in preventing muscle injury, and it also prepares us mentally before starting yoga asanas. So now we will start warm-up exercises. Before starting warm-up exercises, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ. वार्म-अप एक्सरसाइजेस एक प्रोसेस है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, वैसे ही हर एक जॉइंट्स के जरिए ऊपर आते हुए ये प्रोसेस हमारे नेक और हेड पे आके ख़त्म होती है. सो नाउ मी एंड माय फ्रेंड गीताली विल स्टार्ट द वार्म अप एक्सरसाइजेस. दोनों हाथ कमर के ऊपर, फिर धीरे धीरे राइट लेग को सामने लाते हुए हमारे फिंगर्स को एक बार क्लोज करना है, फिर ओपन करना है. फिर हमें लेफ्ट लेग से भी सेम करना है. ये प्रोसेस हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है राइट लेग और लेफ्ट लेग से, और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखनी है. फिर धीरे धीरे दोनों हाथ घुटने के ऊपर, घुटने को एक बार पीछे की तरफ से स्ट्रेट करना है और आगे की तरफ से बेंड करना है. पीछे की तरफ से स्ट्रेट और आगे की तरफ से बेंड. ये प्रोसेस हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है. फिर दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथ कमर के ऊपर, धीरे धीरे कमर को 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और क्लॉकवाइज रोटेट करना है. यह प्रोसेस हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है. दोनों हाथ सीधे करने हैं. फिर राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करना है. यह प्रोसेस हमें दोनों तरफ से 10 टाइम्स रिपीट करना है और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखनी है. फिर दोनों पैर ज्वाइंट करना है. दोनों पैर को ज्वाइंट करते हुए राइट हैंड ऊपर लेते हुए लेफ्ट साइड बॉडी को बेंड करना है. सेम फिर लेफ्ट हैंड ऊपर लेते हुए बॉडी को राइट साइड बेंड करना है. इसमें हमें अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखनी है और ये 10 टाइम्स रिपीट करना है. दोनों पैर में गैप देते हुए हाथों को इंटरलॉक करके शोल्डर लेवल तक लिफ्ट करते हुए ब्रीथ इन करने के बाद बॉडी को राइट साइड टर्न करना है. फिर ब्रीथ आउट करते हुए स्ट्रेट, फिर ब्रीथ इन करते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है.
ये प्रोसेस हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिर दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके बैक बेंडिंग करना है और फिर आगे आते हुए हाथ नीचे, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। लेकिन इस चीज में एक ध्यान रखना है कि अगर आपके बैक में पेन है तो बस बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए फिर हाथ पूरी तरह नीचे नहीं लेना है, बॉडी स्ट्रेट कर देनी है। फिर हाथ पीछे की तरफ बैक बेंडिंग एंड हैंड डाउन। नेक्स्ट, दोनों हाथ शोल्डर लेवल के ऊपर, फिस्ट एक बार क्लोज करनी है और फिस्ट एक बार ओपन करनी है। एक बार ओपन और क्लोज, ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट, दोनों फिस्ट को रोटेट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। ये करते हुए हमें ब्रीदिंग को नॉर्मल रखनी है। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, फिर शोल्डर रोटेट करते हुए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करनी है, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। इसमें भी हमें अपने ब्रीदिंग पर खास ध्यान देते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल रखनी है। दोनों हाथ नीचे, फिर दोनों हाथ कमर के ऊपर। हमें एक बार राइट की तरफ देखना है, फिर लेफ्ट की तरफ देखना है। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम राइट और लेफ्ट की तरफ देखेंगे तब हमारा शोल्डर एकदम स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, मतलब शोल्डर मूव नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हेड अप एंड हेड डाउन, हेड अप एंड हेड डाउन, हेड डाउन। तो ये थी हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेस, हेड डाउन